नमस्कार मित्रो, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण अलाउन्सेस इन्कम टॅक्समधले सॅलरी हेडच्या अंडर कोणते कोणते अलाउन्सेस आपल्यासाठी अवेलेबल होते किंवा जे काही ॲप्लिकेबल आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत. ठीक आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण परक्युजिट्स म्हणजे काय, what is mean by perquisites. So what are the perquisites, how much limit is going to be exempted while recording all these perquisites, which will be treated as a non-cash assistance provided by the employer to the employee. So in such a situation, so what is mean by perquisite? Already I think in the last lecture we have just introduced, just have an overview about this perquisites. Okay, so what is mean by perquisites? Let's have a look on this. Just focus that we are going to discuss about this, what is meant by perquisites. Okay, so perks, some perks will be provided by the employer to the employee. So what is meant by those? The term perquisites indicates some extra benefit in addition to the amount that may be legally due by way of a contract for a service rendered. So in such a situation, what we can call it as, so if employer is rendering some services or delivering some assistance to the employee for performance, for increasing his performance, or for as a particular performance or particular agreement towards the actual contract of that particular service. So in that situation we can call it as it is a part of the employment. So part of employment means the amount that may be legally due by way of a contract. So for what purpose they have appointed to you, so whatever it may be the performance, so accordingly to perform that particular task in a proper way, so that amount is paid by employer to the employee, so that is will be treated as an perquisites. Again we will continue with that. In modern times, the salary package of an employee normally includes monetary salaries and perquisites. So you can focus here, monetary salary and perquisites. Okay, like housing, car, etc. So means some examples, if we focus on these examples, so we can understand this perquisites or housing, car facility, salary, actual salary, monetary and monetary salary, monetary compensation provided by employer to the employee. So just understand. So there are number of facilities provided by the employee to the employer, employer to the employee. So what are those? If they have provided to you, just to avoid the heavy rush in the office timing, if you are reaching beyond or reaching out of time to reach, means whenever you have left your house and you want to reach to your house, your job, so in such a situation, so what happens actually in this, so whatever time you are spending in that particular situation to just stuck in that particular traffic, so to avoid that, a specific transportation facility is provided by employer to avoid this time gap as well as the wastage or the wastage of energy. So that reproduce means that energy, if we replace from somewhere else, so in that situation the productivity will get increase. So for that purpose, employer try to support by providing these non-cash expenses or non-cash assistance, or we can say facilities to the employee. So that may be free car facility, car transportation facility, housing facility, may be rent free accommodation, or cheaper rate, means this accommodation is provided on a lesser price as compared to the surrounding environment. Means whenever we compare actual fair value of the rent of that particular property in the surrounding environment or the environment, so whatever the rent will be there, accordingly they are going to charge. So it might be furnished house or unfurnished house, these may includes. Apart from this, they can provide your children some educational facilities. If those employees who have a small children in their family, they try to establish some play schools, play group schools to facilitate these students or these children's
so that these employees can focus on their actual duties. Otherwise what happens, these small children's will be there in the house and the whole family is getting disturbed out of their thoughts and whatever else, है ना. If they are specifically and particularly in the environment of the that organization and which is run by that organization for employees children's, these facilities also provided at a cheaper rate or it might be a free of cost, so that these employees, maybe ladies or gents, may be focused on, means most of the times they can focus on their actual performance, that will not affect their total mental and physical status. Okay, so likewise again if we go forward to that, some educational institutions were established by the employer. So in that situation, those who are belongs to the children of the employees, they will be provided a lesser price of admission fees, or they may be provided extra courses allowed to these students. So likewise it happens, there are number of facilities which are non-cash facilities were provided to the employer. It might be possible that the employer also establish a hostel facility and that will be provided to the employees childrens. Okay, so likewise, just let's continue with this. Perquisites may provided in cash or in kinds, mostly in kinds, and both the facilities will be treated as an perquisites. Reimbursement of expenses incurred in the official discharge of the duties is not a perquisite. So reimbursement means what? First of all, we are going to incur that expenses, and after that if employer is reimbursing that, that is not treated as an perquisites, because perquisite is a actual the part of a salary which you are getting or receiving from the employer, and that is not going to be reimbursed or that will not be returned to the employer, है ना. So perquisites may arise in the course of employment in that particular profession or maybe in job, if it arises from the relationship of the employee-employee relationship. And ultimately we are discussing this salary chapter, so we can treat it as an salary income. So the relationship between employer-employee should be there, must be there. However, if it is arises during the course of the profession, the value of such perquisite is chargeable at the profit and gains on business and profession. Suppose the employment contract is on business and profession, not the business and profession. You have hired on professional charges. Okay, so means whatever consideration paid to you, that is treated as an professional fees. So in such a situation, that will be treated as an business and profession income. But when the employer-employee relationship is there and you are going to be paid as a consideration in salary, so that will be included in the salary income. Okay, next, perquisites will become taxable only if it has legal origin and unauthorized advantage taken by an employee without his employer sanction cannot be considered as a perquisites. Means if you have followed all the rules and regulations and legally he has appointed, in such a situation that facility is treated as a perquisites. Okay, अभी यहाँ पे देखो हमने क्या क्या देखा है. Perquisites means any assistance provided by employer to employee in cash or in other kinds. Okay, so it includes some facilities like housing facility, rent-free houses, car facility, transportation, free transportation facility. Likewise, there are a number of facilities where there you can access for your children, for your parents, for your if employer holds some hospital. So in such a situation, the all employees and their parents or their relatives will be treated or cured by that particular hospital. That facility is also treated as an perquisites. So likewise, ये ऐसे सारे जो examples हैं, जो facilities हैं, जो provide किए जाते हैं by employer to employee, so that will be treated as a perquisites. Okay, so थोड़ा सा आगे जाते हैं. Perquisites taxable or all employees. Perquisites taxable for all employees. So what are those perquisites which are going to be taxable in all employee category? Okay, so what, just focus on that. Valuation of residential accommodation, accommodation. So the value of residential accommodation provided by the employer
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। अभी एम्प्लॉयर ने अगर आपको मीन्स आपके एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को कुछ रेसिडेंशियल फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका वैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं। तो देखते हैं पहले सिचुएशन क्या है, देखो सर्कमस्टेंसेस क्या है, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, focus, when the accommodation is provided by the central government, so in such a situation or any state government to the employee either holding office or post in connection with the affairs of the union or state, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे आपको अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है, सो इन दैट सिचुएशन इन केस ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एंड इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। अभी देखो फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड में क्या होता है, फर्निश्ड अकोमोडेशन में मीन्स क्या है, आपके पास कुछ फर्निश्ड फिक्सचर्स वगैरह क्या वहाँ पे अपॉइंट किए जाते, सॉरी फिक्सचर्स वगैरह कुछ वहाँ पे एस्टैब्लिश किए जाते हैं, कुछ इंस्टॉल किए जाते हैं, मतलब फिक्सचर्स में कुछ फर्नीचर्स वगैरह अनमूवेबल फर्नीचर अगर कुछ वहाँ पे इंस्टॉल किया है तो दैट इज ट्रीटेड एज एन फिक्सचर्स। सो फर्निश्ड मीन्स सम फर्नीचर आपके पास वहाँ पे है। आजकल तो फर्नीचर में एसी फिक्स्ड जो अनमूवेबल एसीज वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, कुछ वार्डरोब्स जो होते हैं वो भी वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जैसे कि किचन में अगर चिमनी वगैरह लगाए तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे फर्निश्ड के तौर पे हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनफर्निश्ड में क्या है, आपका सिर्फ एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया, नो एनी फर्नीचर इज देयर इन दैट पर्टिकुलर हाउस। सो इन केस ऑफ एकोमोडेशन विच इज़ अनफर्निश्ड, अभी सिर्फ आपको रहने के लिए घर दिया है, तो वैसे सारे सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का है, यहाँ पे हमने देखा है, देखो स्टेप्स क्या है वहाँ पे, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। लेट्स फोकस ऑन दिस। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट, ओके, सो ये स्टेट गवर्नमेंट, इफ दैट एम्प्लॉय बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन सच ए सिचुएशन लाइसेंस फी of that particular house, license fee determined by the central government or by any state government in respect of accommodation in accordance with the rules framed by such government as reduced by the rent actually paid by the employee. So in this situation what we need to focus है ना, कहाँ पे फोकस करना है अभी यहाँ पे, देखो जो लाइसेंस फी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ पे फिक्स की है कि ये घर के लिए इतनी लाइसेंस फीस हो सकती है। आपने काफ़ी बार यहाँ पे सुना होगा, जनरली आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह परचेस करते हैं, फ्लैट वगैरह होल्ड करते हैं, वो ओन करते हैं, तो ऐसे सारी सिचुएशन में आपको पता होगा लाइसेंस फीस क्या है, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, रेंट पेड कितना होता है। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें फोकस करनी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ऑलरेडी वहाँ पे कुछ अगर लाइसेंस फी डिसाइड की है तो ऐसे सारे सिचुएशन में उस लाइसेंस फीस में से क्या लेस करना है हमें, द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉई। अभी जितनी लाइसेंस फी है, जैसे कि ऐसे मानते हैं कि एक साल के लिए उस घर के लिए 1 लाख रुपए रेंट लाइसेंस फ़ी है और हमने एक्चुअल में वहाँ पे 80,000 रुपीज़ क्या किया है, रेंट पे किया है, तो उतना माइनस करके जो भी बचा हुआ जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज़ का बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है तो वो भी तो परक्विजिट्स ही है ना, ठीक है ना। अगर लाइसेंस फी आपकी 1 लाख रुपए है तो कहाँ पे भी जाओगे तो 1 लाख रुपए वहाँ पे आपको रेंट पे करना पड़ेगा और वहाँ पे घर लेके रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस एम्प्लॉय को अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो लाइसेंस फी माइनस एक्चुअल रेंट पे दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय दी दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। ओके, नेक्स्ट अगर फर्निश्ड है यही सेम सिचुएशन रहेगा, लेकिन फर्नीचर का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन अलग से वहाँ पे करेंगे। देखेंगे द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एज डिटरमाइंड अंडर कॉलम 3 शुड बी इंक्रीज्ड बाय। अभी ये अंडर कॉलम 3 जो हमने कैलकुलेट किया है दैट विल बी एडेड विद दिस, मीन्स व्हाट, आपका घर का तो ऑलरेडी आ चुका है ना, अभी क्या करेंगे हम उसमें फर्नीचर का ऐड कर देंगे। फर्नीचर का कैसे ऐड करेंगे, ये फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब ये फर्नीचर वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी उस घर में, तो ऐसे सारे सिचुएशन में अगर वो फर्नीचर ओनर का खुद का है तो ऐसे सिचुएशन में 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इंक्लूडिंग टेलीविजन सेट्स, रेडियो सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, एयर कंडीशनिंग प्लांट और इक्विपमेंट्स, ये जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि एक घर में क्या क्या हो सकता है वो सारे एग्जाम्पल्स परक्विजिट्स के तौर पे फर्निश्ड हाउस के तौर पे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज वहाँ पे दिए हैं, तो ये सारे एसेट्स का 10% पर एनम के बेसिस पे हम जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वैसे हम यहाँ पे एज अ कॉस्ट बोल के वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब घर का तो एक्चुअल पेमेंट हो गया यहाँ पे,
लाइसेंस फी माइनस एक्चुअल रेंट पे, जो भी बचा हुआ बैलेंस होगा वो परक्विजिट्स है, दैट विल बी एडेड विद दिस फर्निश्ड फर्नीचर अमाउंट 10% ऑफ पर एनम। इफ, ये कब पॉसिबल है, अगर वो फर्नीचर ओनर का है खुद, मतलब ओनर का मीन्स एम्प्लॉयर का खुद का है, तब जाके हम 10% ऐड करेंगे। अगर नहीं है, इफ सच फर्नीचर इज हायर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, सपोज उस घर में जो फर्नीचर लगा है एज अ फर्निश्ड प्रॉपर्टी, फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड एकोमोडेशन बोल के ट्रीट करने के लिए, तो वो जो फर्नीचर वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, अगर वो हायर्ड है, मतलब रेंट पे लिया गया होगा, तो ऐसे सारे सिचुएशन में अगर उन्होंने ही खुद रेंट से लेके आपको रेंट पे दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में द एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम एज रिड्यूस्ड बाय द एनी चार्जेस पेड बाय और पेबल फॉर द सेम बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी ऐसे सारे सिचुएशन में घर का तो एक्चुअल वैल्यूएशन हमने किया है कि एक्चुअल लाइसेंस फी माइनस रेंट पेड, जो भी होगा वो एक्स्ट्रा हमारा परक्विजिट्स है। उस परक्विजिट्स में हम फर्नीचर का अमाउंट 10% ऐड करने वाले थे। अगर वो एसेट, मतलब वो फर्नीचर अगर ओनर की है तो, अगर ओनर की नहीं है तो क्या, ओनर ने किसी थर्ड पार्टी से वहाँ पे क्या किया है, हायर किया है, तो वो हायर मतलब रेंट चार्जेस जितने होंगे ना उस फर्नीचर के, मे बी एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जितने भी फर्नीचर्स वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, उसका रेंट जो भी होगा वो एक्चुअल रेंट उसमें ऐड कर सकते हो, जिससे कि वो आपका टोटल फर्निश्ड अकोमोडेशन का कॉस्ट वहाँ पे हो सकता है। उसके थोड़ा सा आगे जाते हैं। अगर सपोज उस सिचुएशन में घर का तो वैल्यूएशन आ गया है, अभी हायर चार्जेस भी हम वहाँ पे ऐड करने वाले हैं, लेकिन ये हायर चार्जेस ऐड करते समय अगर आपने कुछ अमाउंट एम्प्लॉय ने खुद उस जिसकी प्रॉपर्टी है, मतलब जिसका एसेट हमने हायर पे लिया है, मतलब रेंट पे लिया है, उसको अगर उसने कुछ पेमेंट किया है, तो वो सब कुछ मिला के, मतलब वो पूरे पीरियड का जितना भी रेंट उस एसेट्स का, मतलब उस फर्नीचर का होगा, वो उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर फर्नीचर ओनर से बिलोंग, मतलब एम्प्लॉयर से बिलोंग नहीं करता है तो। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। अगर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी, accommodation provided by the employee for central government and state government employee, in that situation the actual license fee minus actual rent pay, whatever the extra amount will be there, that will be treated as an perquisites. If it is a furnished house, so in that situation this total amount means license fee minus rent paid, जो भी बचेगी वो, plus furniture का 10% of cost if that furniture is belongs to employer। अगर furniture belongs to employer नहीं है, तो वैसे सारी सिचुएशन में जिस प्राइस पे उसे रेंट पे लिया है, वो रेंट हम उसमें ऐड करके हमारा टोटल फर्निश्ड एकोमोडेशन की परक्विजिट्स का अमाउंट वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉय, जो पहले वाला केस देखा था वो था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर वही बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, तो बाकी सारे हमारे जैसे आपके जैसे एम्प्लॉयज़ अगर हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो उनके लिए क्या है, वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब वो जो घर आपको दिया जा रहा है रहने के लिए, एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, वो अगर एम्प्लॉयर का खुद का है, तो वैसे सारी सिचुएशन में 15% ऑफ द सैलरी इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 25 लाख एज पर 2001 सेंसस, 10% ऑफ सैलरी इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 10 बट मोर देन 10 लाख एंड लेस देन 25 लाख, 7.5% इफ सैलरी इन अदर एरियाज। अभी देखो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन वाइज उसका कैटेगरी की है। ठीक है, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है और जो घर दिया जा रहा है वो घर है एम्प्लॉयर का, तो वैसे सिचुएशन में अगर 25 लाख से कम पॉपुलेशन वाले सिटी में अगर आपका है, तो 15% ऑफ सैलरी आपका क्या होगा, परक्विजिट होगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, सॉरी फिर से एक बार रिवाइज करो, अगर एम्प्लॉयर का खुद का अकोमोडेशन है और पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है उस सिटी की, जैसे कि पूना है, मुंबई है ना, या ऐसे मेट्रो सिटीज़ के तौर पे हम जिसको जानते हैं, तो ऐसी सिटी में अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जिसकी टोटल पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो वैसे इसमें 15% ऑफ सैलरी विल बी ट्रीटेड एज एन परक्विजिट्स। नेक्स्ट, जिसकी 25 लाख से कम है बट 10 लाख से ज़्यादा है, तो बीच में आ रहा है 10 से 25 के बीच में, अगर उस सिटी के प्राइस पॉपुलेशन अगर 10 से 25 के बीच में है, तो वैसे इसमें 10% ऑफ सैलरी विल बी ट्रीटेड एज एन परक्विजिट। नेक्स्ट आता है 7.5%, इन दोनों को छोड़ के, मतलब 10 लाख से नीचे अगर पॉपुलेशन किसी स्टेट का, सॉरी किसी डिस्ट्रिक्ट का है, किसी एरिया का है जहाँ पे आपको अकोमोडेशन प्रोवाइडेड किया है, तो वैसे सिचुएशन में ये जो 7.5% ऑफ टोटल सैलरी विल बी ट्रीटेड एज एन परक्विजिट्स। ओके,
इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पीरियड ड्यूरिंग विच द सेड अकोमोडेशन वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस इफ द रेंट इज पेड। अगर उसमें उसके बीच में अगर एम्प्लॉय ने कुछ पेमेंट किया होगा तो उतना रिडक्शन वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आप जितना पे करोगे अल्टीमेटली उतना तो हम कंसिडर करेंगे ना ये एज अ परक्यूजिट बोल के, सो उतना वो वहाँ से माइनस हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं। ठीक है, सो ये हुआ हमारा वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एज डिटरमाइंड अंडर कॉलम शुड बी इंक्रीज्ड बाय। अभी ये वाला कॉलम कैसा है, थोड़ा सा अगर पिछला वाला स्लाइड देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कॉलम था हमारा अनफर्निश्ड हाउस का और ये है फर्निश्ड का। अभी ये अनफर्निश्ड है तो हमने क्या किया वहाँ पे 15%, 10% एंड 7.5% है ना। तो 15% किसके लिए, जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है। 10% किसके लिए, जिसका पॉपुलेशन लेस देन 25 है लेकिन मोर देन 10 लाख है, तो उस कैटेगरी के लेवल पे वहाँ पे 10% ऑफ सैलरी विल बी ट्रीटेड एज एन इसका परक्यूजिट, मतलब कौन सा, एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। नेक्स्ट आता है 7.5, बचे हुए सारे एम्प्लॉयज़ के लिए 7.5। अभी अगर वही घर फर्निश्ड है, सो इन दैट सिचुएशन इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ द फर्नीचर पर एनम हम चार्ज करेंगे, और इफ दैट इज हायर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी सो द एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल बाय द सेम सिचुएशन है। अगर फर्निश्ड है, ओनर का ही फर्नीचर है, मतलब एम्प्लॉयर का ही फर्नीचर है, तो 10% पर एनम के बेसिस पे आपके टोटल परक्यूजिट्स में ऐड होगा। अगर नहीं है तो दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, अगर ओनर ने मीन्स एम्प्लॉयर ने खुद किसी और से अगर वो रेंट पे लिया है तो जितना रेंट है उतना एक्चुअली आपके ये 15%, 10% और 7.5 इसमें से कोई कैटेगरी में आते हो आप तो उसमें ऐड हो जाएगा और आपका टोटल रेंट फ्री अकोमोडेशन है या फिर जैसे भी अकोमोडेशन आपको पे किया जा रहा है यहाँ पे दिया जा रहा है उसका आप परक्यूजिट के तौर पे मॉनेटरी कंसिडरेशन वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अदर एम्प्लॉई। हाँ, नेक्स्ट आता है ये वाला हमने अभी देखा ना, सॉरी ये वाला अभी हमने देखा वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, खुद का घर है जो आपको दिया जा रहा है। अभी नेक्स्ट सिचुएशन में देखो वेयर द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अभी एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, एम्प्लॉयर ने ही खुद दूसरों से ये पूरी प्रॉपर्टी रेंट पे ली है और सारे अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे रहने के लिए स्पेस दिया जा रहा है। तो ऐसे सारी सिचुएशन में द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड बाय द और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, और मतलब ऐसे सारी सिचुएशन में जब आपकी प्रॉपर्टी आपको जो रहने के लिए घर दिया है वो घर एक्चुअल में एम्प्लॉयर का नहीं है, एम्प्लॉयर ने किसी और से लीज पे लिया है, तो वो लीज अमाउंट या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा, मतलब 15% ऑफ सैलरी एंड वो एक्चुअल लीज अमाउंट, इन दोनों में से जो भी होगा लेस, मतलब मिनिमम जो होगा, मतलब कम से कम जो होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट प्रोवाइडेड इफ यू हैव पेड द रेंट इफ एनी एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। अगर आपने कुछ उसमें कंट्रीब्यूट किया है, मतलब एम्प्लॉय ने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो उतना माइनस करके वो हमारा रहेगा परक्यूजिट। ओके, सो नेक्स्ट फर्निश्ड है तो ये इतना तो आएगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा, मतलब ये कौन सा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज एंड 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो रहेगा हमारा लेस, जो अगर आपने कुछ पेमेंट किया होगा ये घर का पेमेंट प्लस फर्नीचर का उसमें ऐड होगा। ये फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर सो इन दैट सिचुएशन 10% पर एनम ऑफ द फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, उस टोटल फर्नीचर की कॉस्ट जितनी है उसका 10% पर एनम के बेसिस पे आपके वैल्यूएशन में ऐड होगा, मतलब आपके परक्यूजिट में ऐड होगा। अगर वही फर्नीचर अगर थर्ड पार्टी से हायर किया है तो द एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम एज रिड्यूस्ड बाय इफ एनी चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉय इटसेल्फ, है ना। अगर सपोज एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि ये वाली एसेट को रेंट पे ले लो, मैं आपको उसके चार्जेस दूंगा, तो आपने कुछ एडवांस पे किया होगा तो उतना माइनस करके जो भी बचा होगा वो परक्यूजिट होगा, है ना। सो एक्चुअली वहाँ पे प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट है वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी एम्प्लॉयर वेदर गवर्नमेंट और नॉन और एनी अदर एम्प्लॉयर इन अ होटल। ये वाला केस कैसा है, देखो अभी काफ़ी सारे सिचुएशन में ऐसे होता है कि आपको एक सेमिनार के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए या कभी कभी किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर एम्प्लॉयर ने आपको कहीं पे भेजा है और आपका रेसिडेंस अगर होटल में किया गया है, अकोमोडेशन के लिए क्या है, नॉट एप्लीकेबल, मीन्स दैट विल बी नॉट ट्रीटेड एज एन परक्यूजिट्स, है ना। वो उसके काम के लिए परफॉर्म किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। और तीसरे केस में क्या हो रहा है, अगर वही फर्निश्ड है तो ऐसी सारी सिचुएशन में 24% ऑफ द सैलरी पेड टू और पेबल और द प्रीवियस ईयर एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर
तो देखो 24% है या फिर एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर है, विच एवर इज लोअर दैट विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना क्या है, जितना भी हम कॉस्ट इनकर करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट्स। अगर आप खुद नहीं पे करते, अगर एम्प्लॉयर का खुद का काम है, मतलब एम्प्लॉयर का बिजनेस का काम है, उस सिचुएशन में क्या होगा, बिजनेस अकाउंट में वो एक्सपेंडिचर वहाँ पे चला जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन परक्विजिट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में परक्विजिट, अभी देखो घर तो दोनों के लिए रहने के लिए है, जितने भी लोग हैं, हाँ, लेकिन आपको स्पेसिफिकली अगर कोई फर्निश्ड वहाँ पे फर्नीचर दिया है तो उस केस में एक्चुअल रेंट और 24% ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट दैट विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, अब ये सारी सिचुएशन में 15%, 10% ऑफ सैलरी, ये हमने काफ़ी बार यहाँ पे सुना है। उसके साथ ही अभी देखा हमने 24% ऑफ द सैलरी। तो ऐसे सारे सिचुएशन में अगर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो वो एकोमोडेशन कैलकुलेट करते समय, उस परक्विजिट को कैलकुलेट करते समय मीनिंग ऑफ सैलरी क्या लेना चाहिए। तो फॉर दैट सैलरी इंक्लूड्स पे मतलब बेसिक पे आपका जो भी होगा वो हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे, बेसिक पे ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बोनस है, कमीशन है, कमीशन पेएबल मीन्स पेड और पेएबल दैट बोथ आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड मंथली और अदरवाइज और एनी मॉनेटरी पेमेंट और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब ऐसे कोई भी पेमेंट अगर आपको दिया जा रहा है वहाँ पे, तो ऐसे सारी सिचुएशन में आप उसको क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, by whatever name called from one or more employee as the case may be, however it does not include the following namely। अभी इसमें क्या कहा है उन्होंने, ये सब कुछ तो इंक्लूड होगा लेकिन कुछ इंक्लूड नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, तो थोड़ा सा अच्छे से उसको फोकस करते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड लाइन चला जा रहा हूँ तो देखते हैं। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे अनलेस इट एंटर्स इनटू द कंपटीशन ऑफ सुपर एन्यूएशन और रिटायरमेंट, मतलब डीए आपको दिया जा रहा है लेकिन वो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है मीन्स क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में डियरनेस अलाउंस आपको दिया जा रहा है लेकिन वो सुपर एन्यूएशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपका जब सैलरी कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें जो आपको डीए मिल रहा है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है कि ये डीए आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा या जितने सालों तक आप सर्विस रेंडर करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है डियरनेस अलाउंस। जस्ट फॉर टेम्परवरी अगर आपका शिफ्टिंग हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे, एक सिटी से दूसरे सिटी में, और उतने ही परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको डीए दिया जा रहा है, तो ऐसे सारी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, उसको कंसिडर नहीं कर सकते। अगर इट इज़ नॉट इनटू, हाँ, डियरनेस पे अनलेस इट एंटर्स इनटू दी, मतलब जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट या लॉन्ग लाइफ के लिए परफॉर्मेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जॉब परफॉर्मेंस या जॉब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तब तक आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। अभी प्रोविडेंट फंड अकाउंट को जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है एम्प्लॉय से, वो परक्विजिट बोल के ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो एक्चुअल सैलरी का पार्ट है, वहाँ पे उसके वो प्रोविजंस अलग हैं। अलाउंसेस विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी जो टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते समय वहाँ पे अगर कोई अलाउंस ऐसा है जो टैक्स से एग्जम्प्टेड है तो उसको आप परक्विजिट नहीं मान सकते। ओके, सो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द परक्विजिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17(2), एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17, दैट इज पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल फैसिलिटीज़, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपने कुछ पेमेंट किया है, या फिर वहाँ पे आप अगर देखते हो तो हाउसिंग लोन पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी मतलब इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो कहीं पे एग्जम्प्टेड होता है। तो ऐसे फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने कुछ दी है आपको तो वो क्या परक्विजिट हम मान सकते हैं, तो अभी के लिए वो कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा शॉर्ट में जो हमने यहाँ पे ये इतने बड़े से पार्ट में या पैराग्राफ में हमने देखा है उसका ही थोड़ा सा समरी हम यहाँ पे देखेंगे। सैलरी मीन्स बेसिक पे डियरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर वो डियरनेस अलाउंस पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अगर वो एप्लीकेबल है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ इंक्लूडेड इन द सैलरी। ओके, नेक्स्ट, बोनस। अगर आपको बोनस दिया जा रहा है तो वो भी बोनस वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कमीशन। एनीवे, कौन से भी टाइप का कमीशन अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर आपको मिल रहा है, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है, तो दोनों भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ द अलाउंसेस, जितने अलाउंसेस हैं, मतलब पार्टली टैक्सेबल हो, फुल्ली टैक्सेबल हो, या फिर
कैसे भी टैक्सेबल हो, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, so these are what we are going to discuss here today. So what we are discussing today, so let's focus, all these are the perquisites which are very important for understanding or computing the taxable income from the salary. Okay, so taxable income from salary calculate करने के लिए हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो अभी नेक्स्ट कौन सा है, वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। अभी आपको अगर डोमेस्टिक सर्वेंट वहाँ पे, अगर डोमेस्टिक सर्वेंट मीन्स आपको मेड है या फिर स्वीपर है ना, ये सारी फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पे दिया है, मतलब आपके घर की साफ़ सफाई करने वाली बाई है, बाबा है, जो भी है ना, या फिर मेड है जो कुक वगैरह आपको अगर वहाँ पे दिया है, तो वो भी सारे फैसिलिटीज़ को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, परक्विजिट्स ट्रीट कर सकते हैं ना। तो उसमें क्या क्या आएगा, देखो, इफ सर्वेंट्स आर engaged by an employer or employer paid or reimbursed by the employee for the wages of such servant, it will be perquisites in the hands of the all employees. मतलब आपने जो पेमेंट किया है उस मेड पे, उस सर्वेंट पे, उस स्वीपर पे, that will be reimbursed by the employer. So in such a situation that reimbursement or the saving in the cost will be treated as a perquisite. मतलब आपने पहले पे किया, बाद में एम्प्लॉयर ने दिया, तो अल्टीमेटली आपका ही सेविंग हो रहा है ना। बेनिफिट कौन ले रहा है यहाँ पे, आप ले रहे हो, तो आपके लिए वो क्या है, एक्स्ट्रा सर्विसेज है, तो उसको आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ विच हाउस होल्ड रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोविजन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ perquisites, or if you are incurring some cost and that will be reimbursed by the employer, so in such a situation that will be treated as a perquisites, or the salary paid to these type of servants is called as perquisites. ओके, जैसे कि आपके साफ सफाई रखने के लिए, आपकी गाड़ी धोने का पेमेंट कर रहा है, मतलब आपको, आपके पास एक व्हीकल है, आपने बिल्डिंग में खड़ा करते हो उसको साफ सफाई करने के लिए, अगर सपोज कोई बंदा आता है, वो फैसिलिटीज़ भी आपके, अगर एम्प्लॉयर आपका पेमेंट करता है, तो उस सिचुएशन में दैट विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट, है ना। अब जैसे कि देखो, मिलिट्री वगैरह या डॉक्टर्स वगैरह, या जो ये हॉस्पिटलिटी या हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटलिटी, ये सारे एम्प्लॉयज़ का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, इनको एक स्पेसिफिक ड्रेस होता है। जैसे कि हॉस्पिटल है या होटल इंडस्ट्रीज़ है, इनका जो ड्रेस है उसको मेंटेन करने के, अभी इतने सारे एम्प्लॉयज़ अगर हैं और उसे मेंटेन करने के लिए अगर इंडिविजुअली हम देते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर इंडिविजुअली नहीं देते हैं तो वही ड्रेसेस अगर वहीं पे उन्होंने उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उन्होंने लॉन्ड्री दी है, लॉन्ड्री की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो ऐसे सिचुएशन में दैट फैसिलिटी विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। ओके, मतलब आपके लॉन्ड्री का पेमेंट भी वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ऐसे सारे सिचुएशन में उसको क्या कहेंगे हम, परक्विजिट्स। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर। अभी देखो, ये भी हमारा परक्विजिट है। कैसे है, आप डेली बेसिस पे गैस यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई है, वाटर तो आजकल मीटर पे भी दिया जा रहा है, 1 लीटर पानी यूज़ करो उसके अगेंस्ट आपको कंसिडरेशन पे करना है गवर्नमेंट को, तो ये सारे चार्जेस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो आपके लिए वो क्या होगा, सेविंग हुआ, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस हो गई, एक्स्ट्रा नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन पे किया जा रहा है, या फिर सैलरी का ही एक कैश पेमेंट आप बोल सकते हो, या उतना सेविंग इन द एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। सो इन सच ए सिचुएशन दैट पेमेंट मेड टू द गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, सो दैट फैसिलिटी इज ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। ओके, नेक्स्ट, अभी इसको कैसे वैल्यूएशन करेंगे, अरे जितना गैस आप यूज़ करोगे, जितना मॉनिटरी अमाउंट्स का गैस यूज़ करोगे उतना आपका परक्विजिट्स है, जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 2000 रुपीज़ और एम्प्लॉयर ने आपको दिए 3000 रुपीज़, अभी यहाँ पे उस पीरियड के लिए हमारे लिए कितना बेनिफिट है, 2000 रुपीज़ का, 1000 तो अल्टीमेटली अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे या फिर अगले इसमें हम उसे एडजस्ट करेंगे। तो पीरियडिकली आपको जितना वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, जितना सेविंग हो रहा है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन परक्विजिट्स। वाटर पेमेंट जितना है उतना पेमेंट अगर एम्प्लॉयर ने दिया, उतना बेनिफिट आपका है, तो उतनी परक्विजिट्स आपके इसमें ऐड होंगे। सो वैल्यू ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज वैल्यू ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज। अभी यहाँ पे देखो, एक तो एम्प्लॉय हो सकता है या एम्प्लॉय के रिलेटिव्स हो सकते हैं या उसके पेरेंट्स जो भी नियरेस्ट या ब्लड रिलेटिव्स अगर कुछ हैं, उसके चिल्ड्रन वगैरह है या उसकी वाइफ है, हस्बैंड है, ये जो भी हैं, सो इनके फैमिली में अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है, एक्स्ट्रा एजुकेशनल ग्रोथ पाना चाहता है, तो उस सिचुएशन में कंसेशनल और फ्री एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है
तो उसका भी वैल्यूएशन करना चाहिए और वो भी हमारे परक्विजिट्स में ऐड होगा। तो उसका वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? इफ़ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड और ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये वाला पहला एक सिचुएशन है। दूसरा है इफ़ फ्री education facilities are allowed in any other educational institution by reason or his being an employment of the employee। अब यहाँ पे सिचुएशन दो है, वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना वो एम्प्लॉयर का खुद का है, और दूसरा है कि दूसरे पार्टी वहाँ पे चलाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे लोगों का वहाँ पे एडमिशन करवा के रखा है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है? तो पहला है if that educational institution is belongs to employer, so what will be the cost of such education in similar institution or near the locality, however there would be no perquisites if the cost of such education or value of such benefit per child does not exceed rupees 1000 per month। ओहो, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये दोनों सिचुएशन में अगर वो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर अपने एम्प्लॉय को किसी इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन या दाखिला दिलाता है, ये पहला सिचुएशन। दूसरा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही हमारे एम्प्लॉयर का है, तो दोनों सिचुएशन में उस कोर्स की फीस जिस कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया है सिमिलर इंस्टीट्यूशन में कितनी है, मतलब आपका एडमिशन जिस इंस्टीट्यूशन में हुआ है वैसे ही सिमिलर इंस्टीट्यूशन में कितनी फीस है वो हम कंपेयर करेंगे, या फिर उसी लोकेलिटी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो वो कोर्स से बिलोंग करता है और उसकी फीस जितनी होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज दैट मच परक्विजिट। ओके, नेक्स्ट, अगर ये दोनों भी सिचुएशन नहीं है, एम्प्लॉयर का भी नहीं है और एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं दी है हायर एजुकेशन के या फिर एक्स्ट्रा एजुकेशन का, तो अदर केस में क्या दिया है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन दैट पर्टिकुलर बेनिफिट। अभी ऐसे सारे सिचुएशन में क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है ही नहीं, मतलब आपके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ देना चाहिए ऐसे कुछ है ही था ही नहीं, हमने कभी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वैसे मेंशन ही नहीं किया, हमारे खुद का भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ऐसे सारे सिचुएशन में क्या होगा, जैसे कि देखो हमारा मस्त बिजनेस चल रहा था, हमारे एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनको यहाँ से मुंबई शिफ्ट के लिए ट्रेनिंग को भेजना पड़ा, यहाँ से दुबई ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा, यूएस में भेजना पड़ा 4 दिन के लिए, या फिर उधर जर्मनी में जाके हमारे स्टाफ मेंबर को एक्स्ट्रा पेडोलॉजी है ना क्या क्या हो सकती है, ऐसे अगर कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेस वहाँ पे करके रिटर्न आके कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी है, तो ऐसे सारी सिचुएशन में या रिसर्च में जाने के लिए हमने एक 2-3 दिन का एक रिसर्च टूर है या रिसर्च विजिट वगैरह कुछ अरेंज किया है। तो ऐसे सारे सिचुएशन में अगर नॉलेज बेस्ड एजुकेशन बेस्ड या कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए हमने उनको दुबई भेजा है, या कोई कोर्स की एग्ज़ाम देने के लिए हमने उनको फॉरेन कंट्री में भेजा है, तो वहाँ पे जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा ना वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपके लिए क्या होगा, वैल्यू ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज एन परक्विजिट। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। सो नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू, हाँ नेक्स्ट इधर फ्री और कंसेशनल टिकट्स, किस चीज़ के टिकट्स हैं ये देखते हैं, कौन से टिकट्स, ऐसे कुछ टिकट्स हैं जो फ्री में या फिर कंसेशनल प्राइस पे अगर आपको दिए जाते हैं बाय एम्प्लॉयर। सो कौन से हु हैज़ एंगेज्ड इन, अभी कौन से भी टिकट हो सकते हैं, मूवी के टिकट हो सकते हैं, किसी प्रोग्राम के टिकट हो सकते हैं, किसी कॉन्सर्ट के टिकट्स हो सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स के टिकट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर रेस कोर्स में अगर कोई मैच यहाँ पे चल रही है और आपको अटेंड करने के लिए टिकट दिया जाए, कोई स्टेडियम में हमारी क्रिकेट मैच चल रही है, जैसे कि आजकल आप देखते हो बहुत सारे मैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारा पेमेंट करके यहाँ पे अलग अलग टिकट्स ले रहे हैं, और कुछ ऐसे खुश नसीब एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जिनके एम्प्लॉयर खुद टिकट निकाल के आपको देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दैट विल बी फैसिलिटीज विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी क्वांटम। सो इन दैट द वैल्यू ऑफ एनी benefit or amenity resulting from the provision by an employee who is engaged in that carriage or passenger of goods। अब ये क्या हो सकता है, ये ट्रांसपोर्ट का टिकट बोल रहे हैं, बस का, ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। टू एनी एम्प्लॉय और टू एनी मेंबर और हिज हाउस होल्ड पर्सनल और प्राइवेट जर्नी फीस कॉस्ट और कंसेशनल फेयर, वो भी वहाँ पे किसी भी चीज़ का आप हवा से जाओ, पानी से जाओ या रोड से जाओ, कहीं पे भी अगर टिकट का पेमेंट वहाँ पे किया गया है आपके ब्लड रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स या आपके household members से, in any conveyance owned, leased or made available by any other arrangement by such employer for the purpose of transportation passenger or goods shall be taken to be considered the value actually paid to that particular facility that will be treated as an perquisites। मतलब जितना एक्चुअल कॉस्ट वहाँ पे इनकर करना पड़ रहा है उस एम्प्लॉयर को,
सो दैट विल बी योर परक्विजिट, है ना। या फिर एम्प्लॉयर को, मतलब ऐसे हो सकता है कि एम्प्लॉयर का और उसका कुछ लेना देना है, मतलब लेना देना मीन्स प्रॉपर रिलेशंस है, तो उसको थोड़ा कंसेशनल प्राइस पे मिल रहा है। हाँ, एम्प्लॉयर जितना पे कर रहा है ना उतना आपके लिए परक्विजिट है। सो एक्चुअल ऐसे हो सकता है कि टिकट आपका एक्चुअल में कितना है 1000 रुपये का, लेकिन एम्प्लॉयर को 800 में मिला है, तो आपके लिए 800 रुपये ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हमारा भी है और हम उसके थ्रू से कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे पा रहे हैं, ठीक है। फ्री और कंसेशनल फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फूड फैसिलिटी दी जा रही है हमारे एम्प्लॉयर के थ्रू से एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी तो हमारे परक्विजिट्स हैं। देखो हमारा जो ये सेशन है इसमें मैक्सिमम परक्विजिट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, और ये सारे परक्विजिट्स अगर आप बहुत अच्छे से अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर सुनते भी हो, ऑब्जर्व भी करते हो, उसे रिवाइज भी करते हो, थोड़ा सा अच्छे से समझ के लेते हो, तो लॉन्ग टाइम हमारे पूरे सारे एग्जाम में परक्विजिट्स के टॉपिक को कवर कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, फ्री और कंसेशनल फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके। अल्कोहलिक जो लिकर वगैरह है उसको छोड़ के अगर जो बचे हुए ड्रिंक्स हैं सो उसका, और फूड फैसिलिटी अगर दिया जाता है तो उसमें क्या क्या आ रहा है, देखो उसमें ब्रेकफास्ट आता है, लंच आता है, डिनर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो द वैल्यू ऑफ फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सच एम्प्लॉयर, द अमाउंट सो डिटरमाइंड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी paid or recovered. However, free food or non-alcoholic beverages provided by such employee during working hours at office, business premises through paid vouchers or extent of the value of therein cases does not exceed 50 rupees per meal. Tea, snacks, free food, non-alcoholic beverages, dinner, lunch, जितने अगर कोई भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे पे की जा रही है तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उतना आपका क्या होगा, परक्विजिट होगा, है ना। अगर पर पीस है, पर फ्रीक्वेंसी देखो पर मंथली कितना होता है, उसके हिसाब से आपका पर मंथली वहाँ पे परक्विजिट्स होगा। ये परक्विजिट्स के एग्जांपल्स भी हैं और उसका वैल्यूएशन करके उसको हम हमारे एक्चुअल सैलरी में और टैक्सेबल परक्विजिट्स के तौर पे हम उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर एंड टोकन इन लीव ऑफ सच गिफ्ट, हाँ ये भी सबसे इम्पोर्टेंट परक्विजिट है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट दिया है, गिफ्ट वाउचर है या टोकन है, इन लीव ऑफ सच गिफ्ट, अगर गिफ्ट को छोड़ के अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा वाउचर वहाँ पे दिए जा रहे हैं, कैश वाउचर्स भी दिए जा सकते हैं या कोई प्रोडक्ट के वाउचर्स भी दिए जा सकते हैं, तो ऐसे सारे सिचुएशन में द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर टोकन इन लीव ऑफ सच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बाय मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड और इन सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब ओकेजन में अगर आपको मिल रहा है, और अदरवाइज फ्रॉम द एम्प्लॉयर शैल बी डिटरमाइंड एज अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट। However, if the value of such gift voucher or token as the case may be below 5000 in aggregate during the previous year, the value of perquisite shall be taken as a nil. अगर 5000 से कम कीमत हो रहा है पूरे साल भर में, टोटल जितने गिफ्ट हमें एम्प्लॉयर से मिले हैं अगर 5000 से कम है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नील। और दूसरा, अगर ऑकेजन बेसिस पे अगर आपको कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं और 50,000 तक वो एग्जम्प्ट रहेंगे, उससे ज़्यादा अगर कुछ मिल रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा परक्विजिट्स। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ गिफ्ट गिवन टू यू और द सेविंग्स डन बाय यू ऑन दैट पर्टिकुलर वाउचर दैट विल बी ट्रीटेड एज एन गिफ्ट परक्विजिट्स, ओके। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, अभी देखो जनरली लोन की ज़रूरत तो हर एक एम्प्लॉय को अगर वहाँ पे हो रही है तो एम्प्लॉयर ने लोन की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की है। कंसेशनल या इंटरेस्ट फ्री, जैसे कि देखो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन में कैसे देख सकते हैं हम, जैसे कि देखो आजकल आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह देखते हो या इवन लोन भी देखो ना, अगर कोई एसेट आप परचेस कर रहे हो तो हमारा इधर बजाज फिनसर्व इंटरेस्ट फ्री या फिर जीरो कॉस्ट EMI, ये वैसे कुछ फैसिलिटीज़ आप देखते हो ना, नो कॉस्ट EMI, ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसको कहा जाता है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट पे लोन देने का काम। तो ऐसे सारे सिचुएशन में आप देख सकते हो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट पे जो लोन होता है, अब ये कैसे है, लोन तो दिया जा रहा है लेकिन वहाँ पे कंसिडरेशन के तौर पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ इंटरेस्ट मतलब लेना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे जितना सेविंग आपका हो रहा है ना दैट विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट फैसिलिटी।
मतलब वही चीज़ अगर आप बाहर वालों से आप अगर लोन लेते तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो उतना आपका क्या हो रहा है यहाँ पे सेविंग हो रहा है. सो इन दैट सिचुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन एनी मेंबर और हाउस होल्ड for medical treatment or specified alignment. So if it does not exceed 20,000, the interest at the rate charged on that particular will be treated as a nil, and the maximum outstanding monthly balance will be aggregated, and that much saving will be treated as reduced by the interest. If any actual payment is done by that, the actual saving will be treated as a perquisite. ठीक है. नेक्स्ट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉई एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कोई अगर व्हीकल वहाँ पे आपको दी जा रही है ना, आप यूज़ कर रहे हो या आपके हाउस होल्ड मेम्बर्स यूज़ कर रहे हैं. यूज़ ऑफ लैपटॉप एंड ऑल अदर कंप्यूटर और लैपटॉप की फैसिलिटी दी है, तो दैट वैल्यूएशन विल बी ट्रीटेड एज नील. मूवेबल एसेट्स और अदर देन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर एंड एसेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर एंड पहले पुराने कुछ दूसरे एसेट्स हैं, तो ऐसे सारे सिचुएशन में 10% ऑफ दैट टोटल कॉस्ट, मतलब जो एसेट आपको दी जा रही है उसका 10%, मतलब उसके कॉस्ट का 10% पर एनम के बेसिस पे हम उसको परक्विजिट ट्रीट करेंगे. जैसे कि फर्निश्ड एकोमोडेशन में आपने देखा था, वैसे लैपटॉप और कंप्यूटर है तो उसे नील किया जाएगा, वो कोई फैसिलिटी आपको नहीं है क्योंकि वो काम का ही एक पार्ट है, ऐसे बोल के छोड़ दिया जाएगा. उसके अलावा अगर कोई फैसिलिटीज दिए जाते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए फर्नीचर. Transfer of movable asset. So in such a situation, the actual cost of asset to employer, cost of normal wear and tear amount paid to recovered from the employee. जितना भी अमाउंट रिकवर होता है उतना लेस करेंगे एम्प्लॉय से, और जो भी इनकर किया जा रहा है एम्प्लॉयर ने किया है उतना आपका परक्विजिट होगा. कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 50% ऑफ WDV. ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट को थोड़ा सा फोकस करो. ये ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट मीन्स क्या आपको कह रहा है यहाँ पे, अगर आपको ही पूरा का पूरा वो एसेट दिया जा रहा है, मतलब लैपटॉप दिया एम्प्लॉयर ने और आपके नाम पे ही कर दिया, तो ऐसे सारी सिचुएशन में एम्प्लॉयर ने दिया है ना, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसका 50% डायरेक्टली वहाँ पे आपको परक्विजिट बोल के ट्रीट किया जाएगा. मोटर कार दिया है तो 20% ऑफ WDV, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूसेज, मतलब डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, जितना भी WDV बचेगा उसका 20%, और यहाँ पे 50% ऑफ WDV जितना भी बचा है कंप्यूटर का. मोटर कार है तो 20%, और एनी अदर एसेट है तो 10% ऑफ टोटल एक्चुअल कॉस्ट का पर एनम बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके. समझ में आया. अगर एम्प्लॉयर कोई एसेट अगर एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करता है तो उस सारे सिचुएशन में WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है उसकी, और उसको अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो 50%, अगर मोटर व्हीकल है तो 20%, अदर एसेट है तो 10%, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट जाता है, बचे हुए परक्विजिट्स में हमारे कवर होंगे. परक्विजिट्स एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन ऑल केसेस. अभी जो पहला जो कंडीशन अब तक हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज टैक्सेबल इन ऑल सिचुएशन, एंड दीज आर दी परक्विजिट्स विच वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो दीज आर दी एग्जम्प्टेड, मीन्स परक्विजिट्स एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन ऑल केसेस. व्हाट आर दोज? फर्स्ट, टेलीफोन फैसिलिटी अगर आपको दी जा रही है, कितने भी कॉल करो, टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर दी जा रही है, अभी लेकिन किसको, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग अ पैसेंजर और गुड्स टू हिज एम्प्लॉयज आइदर फ्री ऑफ चार्ज और कंसेशनल रेट. अगर देखो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी है, तो ऐसे सारे सिचुएशन में कैरिंग ऑफ पैसेंजर्स का ही काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ को भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही है, तो इन दोनों सिचुएशन में वहाँ पे वो ट्रीट नहीं किया जाएगा. अभी थोड़ा सा हेडिंग देखते हैं, बहुत सारे हमारे पास परक्विजिट्स हैं, उसके हेडिंग देखो. प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट्स प्रोवाइडेड बाय रेलवेज टू देयर एम्प्लॉयज़. एग्जाम्पल के तौर पे, परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट अगर इंडियन एम्प्लॉय को बाहर के देशों में जाने के बाद, जैसे कि असेंबली में वगैरह अगर कुछ आपका काम होता है तो वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो भी परक्विजिट्स के तौर पे दिया माना जाता है. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम. स्टाफ ग्रुप मतलब एक आधा स्पेसिफिक ग्रुप को किसी जगह पे अपॉइंट किया है और उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो फैसिलिटी भी वहाँ पे, नहीं तो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली हमें लेना पड़ता ना, तो वो जो कॉस्ट और सेविंग या बेनिफिट हम लेने वाले हैं आफ्टर मैच्योरिटी, सो फॉर दैट पर्पज दैट एक्चुअल पेमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन डन बाय एम्प्लॉयर दैट विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट्स. एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी.
आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उसका पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, सो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन परक्विजिट्स। रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज आपको दिए जा रही हैं, अगर वो नहीं देता तो आप रिफ्रेशमेंट नहीं करोगे, क्या करोगे ना, तो जितना सेविंग हो रहा है उतना आपका क्या होगा, परक्विजिट्स। सब्सिडी लंच, सब्सिडाइज्ड लंच मतलब कुछ कंसेशनल रेट पे आपको लंच दिया जा रहा है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मतलब जैसे कि स्विमिंग पूल है, क्लब्स वगैरह दिए हैं, जिम वगैरह प्रोवाइड की है, तो ये सारी फैसिलिटीज़। कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स मतलब गेम वगैरह खेलने के बोर हो गया बहुत काम करके, तो ऐसी सारी सिचुएशन में अगर आप कुछ गेम खेलने के लिए जाते हो तो वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करके देना, उसको कहेंगे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, अब ये भी तो फैसिलिटीज़ है। अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, अभी यहाँ पे देखो हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकर करना पड़ रहा है एम्प्लॉयर को, तो वो भी वहाँ पे हम कंसिडर कर रहे थे, तो यहाँ पे भी तो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो वो भी कॉस्ट जो सेविंग आपकी हो रही है, अगर आपको खुद को ट्रेनिंग लेना है तो एक्स्ट्रा करना पड़ता था पे, तो वो वहाँ पे अगर सेविंग हो रही है तो वो आपका क्या होगा यहाँ पे, परक्विजिट्स। सम पेबल बाय एम्प्लॉयर टू द आरपीएफ एंड अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, सुपरएन्युएशन फंड में अगर वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी परक्विजिट्स के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज परक्विजिट्स, दैट इज मोटर कार। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बचे हुए जो परक्विजिट्स हैं हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज हमने जितना भी डिस्कस किया है शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा रोटेट करते जाओ कि कौन से परक्विजिट्स को कितना कैसे वैल्यूएशन हम कर सकते हैं, जैसे कि वो हमारे माइंड में एक ग्रिप बना के रखें और जब चाहिए तब हम उसे कैच करके टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते समय अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट्स को।